गाली दो, इनके मजाक के नजदीक आगे तो ये बात है, इनकी जात की अगर मोहब्बत हो इनके तो बताइए कि क्या नहीं तकवा आ जाएगा। तकवा अगर बचना है तो मासादिन होना पड़ेगा। इसीलिए परवरदिगार ने कहा इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और ये तकवे को बचाना है तो मासादिन हो जाओ। तो जब इनके साथ होते हैं तकवा आपका जो है महफूज हो जाता है। और आप इनके साथ जब होते हैं, बेखौफ के साथ जब कोई होता है तो वो भी बेखौफ हो जाता है, बेगम के साथ जब कोई होता है तो वो भी बेगम हो जाता है। ये सोहबत का असर है। इसीलिए मौलाना ने कहा कि ये एक लम्हा सोहबत से बा हो गया, एक लम्हा इनके साथ मिले तो हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं है। हमको नवाजने इनके साथ मिला थी, हमारे पास कुछ भी नहीं, ना अमाल ना कुछ, ना बातिन हमारा अच्छा है ना कुछ नहीं। इस वास्ते मौला करीम, मौला रहमान रहीम எப்படிதான் கொடுக்கணும்? கூடன் சேர்ந்தா நாரும் மணக்கும்। ये नार जो है ना, सुबह सुबह इसमें खुशबू आ जाती है। हालांकि ये नार में कुछ नहीं है, नार राजी है वो, मगर इसके साथ जब मिलता है तो महकने लगता है। कूनू मासादिकीन, गिले खुशबू इधर हम्माम हो गए। मौलाना सादी शिराजी सुन रहा है कि एक दिन जो है मैं हमाम में गया तो मिट्टी मेरे हाथ में आई, मेरे माशूक के हाथ से आई मिट्टी। तो मैं मिट्टी को देख के सूंघा और कहा कि जो बहुत खुशबू है, अरे तो कुछ कह के बड़े समझ में नहीं आ रहा है। तो मिट्टी से आवाज आने लगी, ऐ पूछने वाले, मैं मिट्टी ही हूँ, मगर एक मुद्दत जो है मुझे फूल के साथ रख दिया गया। तो जमाले हम नशीद और मन असर कर, इसका जमाल जो है मुझ पे असर कर दिया, मगर ना मैं मिट्टी की मिट्टी हूँ। तो मौला का कर्म हुआ कि हम वली नहीं तो फिर क्या करें? कूनू मासादिकीन, इनके रंग तुम में आ जाएंगे, इनके गुण तुम में आ जाएंगे, इनकी अदाएं तुम में आ जाएंगी और इनकी वजह से तुम अपने महबूब बन जाओ। இப்போ இறைநேசர்களுடைய சன்னிதானத்துக்கு வர்றதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது? அல்லாஹ் சொல்றான், நீங்க தக்வா செய்யுங்க, இறைநேசர்களுடன் சேர்ந்து வாழுங்கள் அல்லாஹ் சொல்றான். இப்போ அவர்கள் முத்தகீன்கள். ஆனா இங்க வர்றதுனால என்ன கிடைக்குது? அவுலியாக்கமார்களுடைய சன்னிதானத்துக்கு வர்றதுல என்ன கிடைக்குதுன்னு சொன்னா, ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க. இவங்க வந்திருக்கிறாங்க, யாராவது ஒருத்தரை பார்த்து, ஏப்பா பஷீரப்பா ரலியல்லாஹு அவங்க தர்பாருக்கு வந்திருக்கிற உள்ளது நீ சிகரெட் குடிப்பான்னு யாரையாவது சொன்னா எவ்வளவு பெரிய பாவம் நினைப்பாங்க. அல்லாஹ் அக்பர், எவ்வளவு பெரிய பாவம் அது. சிகரெட் குடிக்கிறது ஜினா மாதிரி பெரும்பாவம் அல்ல, இருந்தாலும் அவர்களுடைய தர்பார்ல வச்சு அந்த சின்ன தப்ப செய்யறத கூட மிகப்பெரிய பாவமாக வழங்கும். அல்லாஹ் என்ன சொல்றீங்க? நீங்க எங்க வச்சு குடிக்க சொல்றீங்க? அவங்க தர்பார்ல வச்சா, அவங்க தர்கால வச்சா செய்யக்கூடாதுங்களே. அப்ப பாருங்க, அவர்கள் வஃபாத்துக்கு பிறகு, அடக்கம் செய்யப்பட்டதற்கு பிறகு அவங்களுடைய கபருக்கு பக்கத்துல வந்து ஒரு மனுஷன் இந்த சின்ன தப்ப செய்யறதுக்கு கூட விடாம அல்லாஹ் அவனை பாதுகாக்கிறான்னு சொன்னா, அந்த வலியுல்லாவுக்கும் நமக்கும் உண்மையான தொடர்பு ஏற்பட்டு விட்டால் நம்ம எப்படிப்பட்ட தக்வா உருவாகும் சொன்னாங்க. அவன் செய்யக்கூடியது என்ன நண்பர்களே? நாம என்ன செய்யணும்? அவர்களுடன் நாம் தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், அவர்களுடன் நாம் வாழ வேண்டும். அதனாலதான் சொன்னாங்க, சொன்னாங்க அவர்களுடன், இறை நேசர்களுடன் ஒரே ஒரு சனம் இருக்கக்கூடிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைத்து விடுமே. ஆனால் 100 ஆண்டு கால இபாதத் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்தார். நாம ஒண்ணும் இல்லை, நம்மள்ட்ட ஒண்ணும் இல்லை, ஆனால் அவருடைய தொடர்பின் மூலம் அல்லாஹ் மீது கண்ணை காட்டுகிறார். அதனால இந்த இடத்துல அவர்களுடன் சேருகின்ற பொழுது, அவுலியாக்களுடன் இருக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் நமக்கு மிகப்பெரிய கருணையை அல்லாஹ் காட்டுகிறார். உதாரணம் சொன்னாங்க, இந்த மாலை கொண்டு பெரியவங்க போட்டாங்க, அந்த மாலை பூல மனம் இருக்கு, நார்ல மனம் இருக்கா? இந்த நார்ல மனம் இருக்கு, வெளியில இருக்கிற நார்ல மனம் இல்லை. ஆனா இந்த பூவோட இந்த நாரை இருந்துட்டதுனால அதுலயும் மனம் இருக்கு சொன்னாங்க. சொன்னாங்க, அவன் நான் குடிக்கும் பொழுது ஒரு மண்ணு, அந்த மண்ணை எடுத்து நான் உடம்புல தேய்ச்சிக்கிட்டேன், ஆனா அந்த மண்ணுல வாசனை வந்துச்சு. அந்த மண்ணை பார்த்து நான் சொன்னேன், மண்ணே நீ மண்ணு தானே, நீ சாதாரண மண்ணு தானே, உள்ள எப்படி வாசனை வந்துச்சுன்னு அந்த
அந்த மண்ணுக்கிட்ட நான் கேட்டேன். அப்ப அந்த மண்ணு சொல்லுச்சு, நான் சாதாரண மண்ணு தான், என்ன எந்த வாசனையும் இல்லை, ஆனா வாசனை பொருளோட ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் நான் இருந்தேன், அதனால வாசனையே இல்லாத என்ன அந்த வாசனை வந்துருச்சுன்னு சொல்றாங்க. அதனால் அன்பர்களே, இறை நேசர்களுடன் நாம் இருக்கின்ற பொழுது அவர்கள என்ன தகுவா இருந்துச்சோ அது நம்மள வந்துடும், அவர்கள என்ன இபாதத்துகள் இருந்துச்சோ அது நம்மள வந்துடும், அவர்கள என்ன விலாயத்து இருந்துச்சோ அது நம்மள வந்துடும். அதனால் நாம செய்ய வேண்டியது என்னன்னு சொன்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான், அவுலியாக்களுடன் நாம் வாழ வேண்டும். याद रखिएगा, अल्लाह के वलियों के साथ हो जाना, साथ होने में बहुत बड़ी चीज है। आपको मालूम है लोहा जो है आग में जब डाल देते हैं तो लोहा कहता है मैं भी आग हूँ, मैं भी आग हूँ, क्या उसमें आग में उसमें फर्क नहीं रहता है। तो इसी तरह आशिक जब अपने माशूक के साथ हो जाता है तो इसके पर तो इसमें पड़ता है, और फिर ये खुद देखता है कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं हूँ, कोई और नजर आ रहा है। सदके जाऊं मेरे आका हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला पर, आशिक रसूल सड़क पे दौड़ तेजी से जा रहे हैं और कैफियत में जा रहे हैं, मैयत के कैफियत में जा रहे हैं, अब आका के साथ की कैफियत में जा रहे हैं, अपने अंदर मेरे आपने अपने आका के साथ किसी और को नहीं देख रहे, जिधर पेट्रोल में मोहम्मद ही नजर आ रहे हैं। लोगों ने पूछा मोहम्मद कहाँ है बिलाल, हमें मिलना है, मोहम्मद कहाँ है। जलाल की आंखें थी हजरत बिलाल की। अरे पूछने वाले क्या पूछता है, तभी पूछता है आईना मोहम्मद, आना मोहम्मद, अरे उनको खत्म आ गया, जब उनके हुए तो जब खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए वली जब बन जाता है तो इसके गुण चाहने वाले में आते हैं, और इन पे जो मेहरबानियां होती हैं वो चाहने वाले पर भी होती हैं। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया मन आदाली वलिया, जो मेरे वली से दुश्मनी करे वली डरेगा नहीं। क्यों? वली को एक ही काम है, वो मैयत का खेल खेलता है, वो मैयत के खेल में रहता है, वो अपने यार से हटके फुर्सत नहीं है उसको फुर्सत नहीं देते, अपनी मोहब्बत से हटने की फुर्सत नहीं देते। वो यूं ही नशा कम होता है फिर पिला देते हैं, कोई इश्क की शराब पिला देते हैं, फिर मस्त हो जाता है। फुर्सत होश ही न दी, मस्ती है चश्मे यार में, नशा जला जो कम हुआ फिर से मुझे पिला दिया, वो मस्ती में रहते हैं। मगर मौला फरमाते हैं जो ऐसा मुझ में मस्त है उसके ताल्लुक से दुश्मनी करोगे, मारोगे, कतरोगे, झगड़ोगे, जलीगे, वली से दुश्मनी करोगे, मैं द्वार डिक्लेयर करता हूँ। मैं खत्म करूंगा एक बुजुर्ग महाराष्ट्र के, कभी आप जाएंगे तो आपके मदार पे जाना, अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह अलैह, कौन से जगह पे भेजी बतानी, हम जाके गए लाट वहीं खरीद में है, तो आपका वाक़या 100 साल 150 साल पहले की बात। आप जो एक मरतबा मजदूर थे, आप अल्लाह के वली जा रहे हैं, आप मौला की याद में जा रहे हैं, कैसे साथ हैं, याद रखो अगर सही है अल्लाह का चाहने वाला है नहीं, दोनों मासादीन के बाद जो है उसकी कैफियत बन जाए। अरे यार हजरत के मोहम्मद रसूल यार पिटे बंदा अल्लाह की मन है ना, मोहब्बत है ना। अब अल्लाह से जिसको मोहब्बत हो जाए और अल्लाह जब मिल जाए, अपना महबूब जब मिल जाए, किसी का ख्याल नहीं रखता, सबको भूल जाता है। तो ये अपने मस्ती में जा रहे हैं, सामने जो है ना एक जोड़ा जा रहा है, बस वो जा रहे हैं, तो हजरत बारिश हो गई थी, पानी बरस गया था, हजरत जो जा रहे थे मस्ती के आलम में, उनका ख्याल की गड़ा में कीचड़ था, पैर पड़ गया, पैर जो जोर से आपने डाल दिया तो कीचड़ उड़ के जो है वो आशिक के माशूक था, तो लड़की के गाल पे कीचड़ पड़ गया, तो पलट के आया, आगे गुस्से में आके हजरत पे 2-4 तमाचे इतने खींच दिया गया कि ऐसे जाता है, देख के जानी मालूम नहीं, अरे मेरी भी माशूका का चेहरा गंदा हो गया, गाल खराब हो गया। आपको मान रहा है मगर एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि वो कैफियत है, वो कैफियत में अल्लाह अल्लाह
खैर बातें हो तो सुबह तक हो जाएगी। ये बातें जब निकलती हैं तुझे वक्त नहीं रहता, लिहाजा मैं मुख्तसर करता हूँ कि वो जब मार दिया तो आप मुस्कुरा के सना देके निकल गए। ये लोग सामने गए, कौन? ये आशिक और माशूक। एक 50 कदम 100-200 कदम गए, सामने एक पत्थर आया और पत्थर को ठोकर लगी और लोग पूरे जमा हो गए। क्या है? मर गया, सर पे मार लगा, इंतजार हो गया। अब लोग जमा हो गए, कैसा हुआ, क्या हुआ, किधर हुआ? कोई नहीं, कौन मारा? कोई नहीं मारा। उसके बाद वो औरत कहने लगी, हो गया 2 मिनट, वो औरत कहने लगी कि क्या हुआ? मैं नहीं हूँ, है ना वो हजरत है ना, उनसे लड़ाई हुई, वो अभी बुढ़े से लड़ाई हुई, तुम्हें याद है ना? उसके बाद ऐसा हो गया। वो हजरत को पकड़ लिया, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ। बोले अरे छोड़ो जी, वो छोड़ो, वो यार का मामला। मेरा पाँव कीचड़ में गिरा, उसके यार के ऊपर गाल को पड़ा, उन्हें आपको मंजे मारा, उसके यार को कीचड़ पड़ने में मुझे मारा बोलते मेरा यार उसे मारा। मैं क्या करूँ? यार का मामला है। तो याद रखना कि ये अल्लाह के वलियों के साथ हो जाओ, तुम्हारी बिगड़ी खुद तो खुद बनती जाएगी। बाकी அல்லாஹ்வுடைய நேசர்களுடைய தொடர்பு கிடைப்பதற்கு காரணமாக நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு சொன்னா, அவர்களின் காரணமாக நாம் அருள் புரிகின்றோம், அவர்களின் காரணமாக நமக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிகிறான். அது மட்டுமல்ல, அவுலியாக்களுடைய அந்தஸ்து எப்படிப்பட்ட அந்தஸ்துன்னு சொன்னா, மன் ஆதாலி வலியன் ஃபகத் ஆதன்துஹு பில் ஹர்ப். அல்லாஹ் சொல்றான், அவுலியாக்கள்